बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो मुत्तहद रहें और शख्सी इख्तलाफात को दूर करें। इंतशार के नतीजे में मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों को नुकसान होगा और मजलिस के दुश्मनों को फ़ायदा होगा। मजलिस की जानिब से बीजेपी को शिकस्त दी जाती रही है और बीजेपी को शिकस्त देने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मजलिस हर उस इकदाम की तायद करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम ना बन सके। अब दीगर सियासी जमातों को इस बात का फैसला करना है कि वो कहाँ खड़े हैं। अगर वो बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं तो फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। इन रियासतों में लोकसभा की 65 नशिस्तें हैं। ऐसी रियासतों में बीजेपी को आसानी से कामयाबी कैसे मिल गई। सदर मजलिस ने लेगेसी फंक्शन हॉल में हल्का असम्बली बहादुरपुरा के इब्तदाई मजालिस के सुदूर से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सदर मजलिस ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि भारत में अक़लियतों को कोई ख़तरा नहीं है। अगर ये बात हकीकत पर मबनी है तो फिर लोकसभा के एक रुकन की जानिब से दूसरे रुकन के खिलाफ क्यों नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अगर अक़लियतों से कोई अदावत नहीं है तो फिर मुस्लिम इलाक़ों में बुनियादी सहूलतें क्यों फराहम नहीं की जा रही हैं। बिहार और यूपी में हिंदी पढ़ने वालों के तमिलनाडु में सिर्फ मकानात तामीर करने और बैतुल खला साफ करने के काम ही अंजाम देने से मुताल्लिक डीएमके के एमपी दयानिधि मारन के बयान पर बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि यह बयान मखसूस पार्टी के ख्यालात नहीं हो सकते, इससे मुल्क के ताने बाने पर असर पड़ेगा। यह पार्टी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है जिसकी क़यादत राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुसलसिल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बयान दिए हैं ताकि मुल्क मुत्तहद हो। दयानिधि मारन का ये बयान नामुनासिब है। See, it's not about a old Dravidian party or it's not about one particular party's views. It is about how these kind of statements are going to disturb the fabric of our nation and which alliance is this particular party a part of. It is a part of INDA alliance which is led by the Congress and Mr. Rahul Gandhi. And Mr. Rahul Gandhi continuously keeps making a lot of statements about Bharat Jodo Yatra where he is constantly trying to unite the nation, etc. Now looks like a PR stunt because otherwise Mr. Rahul Gandhi should have stood up, spoken when comments were made on Sanatan Dharma, hurting crores of Hindu sentiments in this nation. Then there were statements, derogatory statements made on the entire cowbelt states, calling them Gaumutra states, that Hindi Patti states were very made on, very derogatory statements in the House of the Parliament. Rahul Gandhi ji was again silent. Now this old video surfaced, now tomorrow another video will surface. It will constantly happen. But the issue here is what is the stand that the main party, Congress party, and the main leader, Mr. Rahul Gandhi, is taking. See, in Telangana we call him Election Gandhi, otherwise he does not speak. But when there are elections, we are hoping at least now he'll speak because the national parliament election is not far away. At least now Rahul Gandhi ji should make it clear to the nation that he is not anti-Hindu, he is not anti-poor, he is not anti-labor. Because in our state, in Telangana, Honorable Leader KCR Garu always called migrant labor partners in progress. Now their alliance partners are insulting migrant labor. Now what is the stand of Mr. Rahul Gandhi ji? That is more important. रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने सिंगारनी कॉलरीज के वर्कर्स से 27 दिसंबर को होने वाले सिंगारनी यूनियन के इंतखाबात में INTUC को वोट देने की अपील की है। उन्होंने इस सिलसिले में जारी करदा अपने वीडियो पैगाम में कहा कि INTUC वर्कर्स की फलाह बहबूद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। నా సింగరేణి కార్మిక ఉద్యోగ సోదరులందరికీ మీ పొంగులేటి శ్రీనన్న నమస్కారాలు. మార్పు కోసం, గనుల మనుగడ కోసం, సింగరేణి ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఈ నెల 27 జరిగే సింగరేణి ఎన్నికల్లో INTUCకి భారీ విజయాన్ని అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. 6 గ్యారంటీలతో INTUC మీ అందరికీ అభయం ఇవ్వనుంది. నూతన అండర్ గ్రౌండ్ బొగ్గు గనులను ప్రారంభిస్తాం. నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తాం. సింగరేణి బొగ్గు గనుల ప్రైవేటీకరణను కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా అడ్డుకుంటుంది. సింగరేణి కార్మికులందరికీ సొంత ఇంటి పథకం అమలు చేస్తాం. ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తున్న నా సింగరేణి కార్మికులకు చెల్లించే అలవెన్స్ పై ఆదాయ పన్ను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాజమాన్యమే కట్టేలా చూపిస్తాం.
ఇప్పుడున్న అన్ని ఏరియా ఆసుపత్రులను ఆధునీకరించి కొత్త 2 సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని ఏర్పాటు చేసుకుందాం. మహిళా కార్మికులకు మౌలిక వసతులు కల్పించుకుందాం. అండర్ గ్రౌండ్ దించకుండా సర్ఫేస్లోనే ఉద్యోగం కల్పిస్తాం. కారుణ్య నియామకాలలో గత ప్రభుత్వంలో అవినీతి రాజ్యమేలింది. మన ప్రభుత్వంలో కారుణ్య నియామకాలను పారదర్శకంగా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం కల్పిస్తాం. వీటన్నిటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఐఎన్టీసీ గడియారం గుర్తుపై ఓటేసి మంచి మెజార్టీతో గెలిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. BRS के मलकाजगिरी के रुकन असम्बली मर्री राजशेखर ने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और उन्होंने आवाम से मुलाकात की. इसी के हिस्से के तौर पर उन्होंने मचा बोलारम साई नगर कॉलोनी जनप्रिया अपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की. ज़राए के मुताबिक उन्होंने आवाम से उनके मसाइल के बारे में तफसीलात हासिल की. जनप्रिया अपार्टमेंट के करीब तालाब, शमशान और रेलवे लाइन के मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की गई. साबिक वजीर थलसानी श्रीनिवास यादव ने क्रिसमस की तकरीब में हिस्सा लिया. वेज़ली चर्च सिकंदराबाद में मुनक्किदा दुआया इज्तिमा में उन्होंने हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని మీ చేతులకు అప్పగించి ప్రార్థిస్తున్నాము. నిదాసుడు ప్రజా సేవలో ఉండి ఒక ఎమ్మెల్యేగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆశీర్వదించబడడానికి మీరు ఉపయోగించారు. ఎన్నో తలాంతులను ఇచ్చారు. ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి పరిచర్యలు జరిగిస్తుండగా జ్ఞాన వివేకమును, ఆరోగ్యమును, సకల ఆశీర్వాదమును దయచేయండి. వారికి, వారి సతీమణి గారికి ప్రేమించిన గర్భఫలములకు కావలసిన పరలోకపు దీవెనలిచ్చి వారి జీవితంలో మీరు జన్మించి నిజమైన క్రిస్మస్ ఆనందంతో సంతృప్తి పరిచి దీవించమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. कुत्ते के हमले में 5 माह के नौज़ायदा की मौत हो गई. ये वाक़या शेखपेट में पेश आया. इस नौज़ायदा को झोपड़ी में रखकर इसके माँ बाप करीब में काम करने के लिए गए थे. ताहम जब वो वापस हुए तो उन्होंने देखा कि नौज़ायदा ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है. इसको फौरी तौर पर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर तकरीबन 17 दिनों तक इसे ICU में रखा गया. ताहम इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत 7 माह से काम कर रही है. उन्हें सिर्फ एक हुक्म जारी करना था कि कोई ड्रेस कोड नहीं है. उन्होंने दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक के वज़ीर आला इस हुक्म को जारी करने से खौफजदा हैं. उन्होंने हिजाब पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया. 7 महीने हुए हैं, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है. वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं. अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बस कोई ड्रेस कोड नहीं होगा. इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको. ड्रेस कोड नहीं होगा, आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे. और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते हैं और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं. तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोर शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धरामैया के लिए. अब वो लोग खामोश क्यों हैं? जो लोग हमको गुस्सा करते थे, हम पर तनकीद करते थे, अब वो बोले ना भाई, आपने इनके लिए प्रचार किया, इनको आपने सत्ता दी, तो इनको चाहिए. इनका मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से
पसोपेश कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। जनसभा में एक बात बोलते कि जिसको जो खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, और फिर फौरन एक आधे घंटे के बाद बोलते नहीं अभी तो हम फैसला नहीं लिए। तो हम कर्नाटका के कांग्रेस सरकार से, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि आप फौरन अपनी सरकार से एक ऑर्डर निकालिए जिसमें ये जो हिजाब पर पाबंदी उसको खत्म करिए। भाई हिजाब पहनकर भी लड़कियां पढ़ना चाह रही है, उनका तालीम मुतासिर हो रही है, उनकी शिक्षा मुतासिर हो रही है, और क्यों उनको आप रोक रहे हैं हायर एजुकेशन में तालीम हासिल करने से? खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने के लिए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम का आगाज किया गया है। ताहम बास खवातीन ने शिकायत करते हुए कहा कि बस कंडक्टर्स मुफ्त सफर के लिए जीरो टिकट देने के लिए भी उनसे रकम वसूल कर रहे हैं। इन खवातीन ने कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे शिनाख्ती कार्ड्स दिखाने के बावजूद भी उनसे रकम वसूल की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये कार्ड्स मुनासिब नहीं हैं। याखुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने IS सदन में महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में ईसाइयों में कपड़ों की तकसीम की। इस मौके पर संतोष नगर के मजलिसी कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और इब्तदाई मजालिस के सुदूर मुतमद्दीन भी मौजूद थे। हनमकुंडा में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की एक चलती बस के पिछले हिस्से के टायर निकल गए, ताहम इस वाक़े में मुसाफिरीन महफूज रहे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बस हुजूराबाद से हनमकुंडा की सिमत जा रही थी। इस वाक़े के वक्त मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। यह हादसा हुजूराबाद हनमकुंडा रोड पर पेश आया। बस के टायर निकलने के साथ ही बस में सवार चंद अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में कलेक्टर के जूते अटेंडर के पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। कलेक्टर भावेश मिश्रा मुकामी चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। वो जूतों के साथ अंदर चले गए, ताहम जब उन्होंने महसूस किया कि जूतों के साथ अंदर जाना मुनासिब नहीं है तो उन्होंने जूते उतार दिए और वहां ठहरे हुए अटेंडर को थमा दिए। प्रोग्राम के अख्ताम तक अटेंडर जूते हाथ में पकड़ा रहा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद ने इस वाक़े पर नाराज़गी दिखी गई। विकाराबाद में कार तालाब में गिर पड़ी। इस वाक़े में एक शख्स गर्क हो गया। ये हादसा आज सुबह के अवलीन सातों में विकाराबाद में पेश आया। कोहर के सबब रास्ता नज़र न आने की वजह से कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार तालाब में गिर पड़ी। इस कार में सवार अफराद विकाराबाद से हैदराबाद जा रहे थे। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 महफूज रहे। नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के नड्डा मारू मंडल के वेमपाड़ स्टेज कौमी शाहरा 186 के करीब सुबह के अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब टैंकर के ड्राइवर को कोहर के सबब रास्ता नज़र नहीं आया और इसने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया और ये टैंकर मुखालिफ सिम से आने वाली टाटा एस ऑटो से टकरा गई। इस हादसे के वक्त ऑटो में 7 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। केरला के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस ने वज़ीर आला पिनराई विजयन के प्रोग्राम नवा केरला सदस्यों के सिलसिले में यूथ कांग्रेस के कारकुनों पर पुलिस की ज्यादती की शदीद मजम्मत की। इस ज्यादती के खिलाफ हफ्ते को DGP ऑफिस तक एहतजाजी मार्च निकाला गया, ताहम एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया क्योंकि पुलिस ने इस मार्च में शामिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। उर्स शरीफ दरगाह हजरत सैयद शाह हैदर वलीउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह लातूर महाराष्ट्र के सिलसिले में 26 दिसंबर को चरागा महफिल समा और कवाली की महफिल होगी। 27 दिसंबर को ख़त्म शरीफ फातिहा ख्वानी और महफिल समा का एहतमाम किया जाएगा।
बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला वसीलता इल्ला अंता या रसूल अल्लाह अलमदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी खुतब रब्बानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अल-फातिहा इला हज़रतुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमुज़ ज़हरा बिन्ते रसूल इमाम हसन इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हसन मुसन्ना इमाम बाखर इमाम जाफ़र अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली करमल्लाहु वजहू शेख अब्दुल कादिर गिलानी महबूब सुबानी खुतब रब्बानी बिलखुसूस शाह जीजा सैयद शाह हैदर वलीउल्लाह क़ादरी अलमारूफ दादा पीर अल-फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी के कारकुनों ने एक मस्जिद की दीवारों पर काबिल एतराज़ नारे तहरीर कर दिए। ये वाक़या हफ्ते की शब पेश आया। दिल्ली गेट चौराहे की इस मस्जिद पर जय श्री राम के नारे तहरीर कर दिए गए। दिल्ली गेट चौराहे का इलाका शहर के हसास इलाकों में से एक है। दीवार पर लिखे गए नारों पर मुसलमानों में बरहमी और नाराज़गी पाई जाती है, जिसके पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चलो अयोध्या धाम। बहुत ही हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि हमको अपने सामने भव्य राम मंदिर देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में पूरे अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ महानगर के अंदर या पूरे भारत के अंदर खूब तैयारियां जोरों चल रही हैं 22 जनवरी को लेकर। हमारे अलीगढ़ में इस समय हमारे सभी संघ के स्वयंसेवक और बजरंग दल के कार्यकर्ता भाजपा के मंत्री दीवार लेखन में इस तरह काम कर रहे हैं। जगह जगह श्री राम जय राम चलो अयोध्या धाम 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता हर जगह हर नगरों में लगे हुए हैं। आप सब लोग हर्षोल्लास से सबको बनाइए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। हाँ, 26 तारीख को अक्षत कलश होंगे। सभी स्वयंसेवक बंधु प्रत्येक घर में जाएंगे और पीले चावल का न्योता लेकर प्रत्येक हिंदू परिवार में, प्रत्येक सनातनी परिवार में हम जाएंगे और पीले चावल और भगवान राम का चित्र और अयोध्या धाम का चित्र जो अयोध्या में मंदिर बना है उसको लेकर सबको आमंत्रण करेंगे कि जाइए आप। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, राम मंदिर हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद 30 तारीख को इसी कार्यक्रम के निमित्त 30 तारीख को हरिगढ़ महानगर में कम से कम 10,000 की संख्या में बाइक रैली निकलेगी, पूरे हरिगढ़ महानगर के अंदर घूमेगी। और उस बाइक रैली का दृश्य ऐसा होगा हवा में पूरे हरिगढ़ को कर दिया जाएगा। 30 तारीख को जागरूकता रैली है अयोध्या। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।